Hello students, welcome in your social science class. Today we are going to discuss a very important chapter of history, chapter 10th, colonialism, ruler and tribal society. You have already read in the previous chapter that establishment of company rule. Company rules mean East India Company rule in India was a long journey full of struggles, battles, wars and diplomatic moves. To establish their rule, East India Company have to fight many battles and wars with their rival companies like French East India Company. The English came as a trader in India and became our masters. Slowly, they won India from south to east and then headed towards the north. Okay, firstly, they conquered India, won India from the south, and then they headed toward north. Slowly, they emerged as a supreme power in India. They became the masters of India. There was hardly any aspect left of India economy which was not affected by British. It means British East India Company totally disturbed our economic system. Okay, they destroy our traditional economy and they set up their own economy. Unlike the earlier rulers and invaders, English totally shattered and traditional self-sufficient rural economy. No doubt other rulers also came in India, other invaders also. Invaders means foreign attacker, foreign invader, आक्रमणकारी like मुगल भी हमारे देश में आए थे. But only British totally destroy our traditional self-sufficient economy. Before the arriving of East India Company, our economy was traditional and it was self-sufficient. It means the ruler people were totally dependent on themselves. They were not dependent on others for their livelihood. The economic exploitation of India by the British totally destroyed the peasantry and uprooted the tribals and destroy Indian traders and handicraft. British East India Company introduced machine-made articles, their own articles that was brought by British from the England. Okay, and this machine-made articles totally destroy our handmade articles and destroy the Indian economy, which was traditional economy of India. British not only destroy the peasant worker or farmers, you can say now you can say farmer, and earlier these were called peasant and cultivators. They not only destroy the peasant or they also destroy the traditional economy of tribes and totally destroy the trade and handicraft of India. Now, colonial agrarian policy and its impact. Now we will discuss about how colonial agrarian policy, agriculture policy impact our Indian economy. Before the advent of East India Company के आने से पहले the rural life in India was simple and self-sufficient. The rural economy in India was simple, very simple. We were leading a simple life and we were not dependent others. Self-sufficient means we were not dependent on others. We were totally dependent on us. The British brought many changes in the field of land revenue. British changed our system and they made change or introduced change in the land revenue system, means land tax system. They introduced land tax system, agriculture, trade, industries and administration. They introduce many change in tax system, agriculture, trade and industrial and administration changes for their own interest. Okay, to fulfill their own interest or benefit, British East India Company introduced many changes. Okay, East India Company devised यानी बहुत सारे न्यू मेथड उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, यूज़ किए टू इंश्योर द कलेक्शन ऑफ टैक्स, रेवेन्यू में टैक्स फ्रॉम द इंडियन टेरिटरीज. भारत से उन्होंने बहुत वेरियस टाइप से टैक्स कलेक्ट किया
अनेक्स्ड एंड कंट्रोल बाय देम। कैसे टैक्स कलेक्ट किया? पहले उस टेरिटरी उस एरिया पर अटैक करते, फिर उसको अनेक्स्ड भी कर लेते थे, यानी अपने राज्य में मिला लेते थे। जैसे रानी लक्ष्मी झांसी का एरिया मिला लिया था, कानपुर, अवध, ये एरिया उन्होंने अनेक्स कर लिए थे, ठीक है। और उनके ऊपर फिर कंट्रोल कर लेते थे, या तो वार करके अनेक्स करते थे या कोई और एक्सक्यूज़ से उनको अनेक्स कर लेते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे। अब जब एक टेरिटरी, भारत की कोई टेरिटरी ब्रिटिश एम्पायर में मिल जाती थी तो उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का राइट भी ब्रिटिश को मिल जाता था। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश को किसी भी एरिया को, किसी भी भारत की टेरिटरी को कंट्रोल करने के बाद वहाँ से इनकम होनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि वो लोग वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। ब्रिटिश एम्पायर स्लोली एक्सपेंड होता गया, ब्रिटिश एम्पायर बढ़ता गया। इस प्रकार से रेवेन्यू यानी टैक्स भी बढ़ता गया, उनकी इनकम के सोर्स भी बढ़ते गए। एज मच सो दैट द लैंड रेवेन्यू बिकेम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। और इतना टैक्स बढ़ाया, जितना एरिया वो अपने एम्पायर में मिलाते गए, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करते रहे, उतना ही उनका टैक्स जो था वो बढ़ता गया, क्योंकि मोर एरिया उनके कंट्रोल में आता गया और मोर टैक्स उनको मिलना शुरू हो गया। ओके, एट दिस स्टेज land revenue settlement were introduced with the aim of to collect the more and more tax and for the economic exploitation। भारत में ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी कि लैंड के ऊपर टैक्स कलेक्ट करना इंट्रोड्यूस किया। किस लिए? ताकि वो हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सके और मैक्सिमम टैक्स को कलेक्ट कर सके। तो देयरफॉर जमींदारी सिस्टम, मेक इट अंडरलाइन, जमींदारी सिस्टम अंडर द परमानेंट सेटलमेंट। ब्रिटिश ने क्या किया? टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और इस सिस्टम को नाम दिया परमानेंट सेटलमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, यानी उसका परमानेंटली सोल्यूशन कर दिया। वॉज इंट्रोड्यूस इन बंगाल। ओके, इसके ये परमानेंट सेटलमेंट जो था बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, और उस सिस्टम का नाम था जमींदारी सिस्टम। ओके, जमींदारी सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? बंगाल में। कब किया गया? 1793 में। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। गॉट इट? 3 MCQ बन गए आपके ये क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एंड वेस्ट इंडिया वर पुट अंडर द रोहितवाड़ी सिस्टम। अब बंगाल में इंट्रोड्यूस किया जमींदारी सिस्टम, यानी ये परमानेंट सेटलमेंट के 3 सिस्टम इसके अंडर ही परमानेंट सेटलमेंट किया और इसके अंदर 3 सिस्टम आते थे। नंबर 1 जमींदारी सिस्टम, नंबर 2 रोहितवाड़ी सिस्टम और नंबर 3 माहौलवाड़ी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। रोहितवाड़ी सिस्टम जो शुरू किया था ये साउथ इंडिया में थॉमस मुनरो ने किया, और जो माहौलवाड़ी सिस्टम था ये 1882 में गैंगटिक वैली में इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसने किया? होल्ट मैकेंजी ने। और ये 3 सिस्टम्स के नेम क्या थे? जमींदारी सिस्टम, रोहितवाड़ी सिस्टम एंड माहौलवाड़ी सिस्टम। गॉट इट बेटा? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द जमींदारी सिस्टम। अब ये कौन से सिस्टम के अंडर आ जाता था? परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। अब जमींदारी सिस्टम क्या था? देखिए, जमींदारी सिस्टम वॉज मेड अ हेरिडेटरी राइट ऑफ जमींदार्स। जमींदार जो होते थे, अब जमींदारी सिस्टम किसके कंट्रोल में था? जमींदारों के। ओके, परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग, जमींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हुआ? जमींदार जो थे हेरिडेटरी राइट बन गया था, यानी कि अगर फादर जमींदार है, ओके, तो उसका बेटा भी क्या होगा? जमींदार होगा। ये हेरिडेटरी, उनको पोस्ट मिल गई थी जमींदार की। अब ये क्या करते थे, या इसको क्या बोलते थे? जमींदारी बंदोबस्त। इन 1793 में दे वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड। अब इससे क्या हुआ? जमींदार यानी कि जिसके पास ज़मीन हो, तो इसका नाम से ही क्लियर होता है कि जो पर्सन ज़मींदार था वो क्या बन गया? लैंड का ओनर बन चुका था। एंड नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, नंबर 1 जमींदारी सिस्टम के अंदर पॉइंट्स बना लेने हैं आपने। नंबर 1 जमींदारी सिस्टम मेड अ हेरिडेटरी राइट ऑफ जमींदार। ओके, नंबर 2 दे वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड। नंबर 3 दे वर फोर्स टू पे 89%। अब ये सिस्टम समझना है आपने कि इस सिस्टम में किया क्या गया था
2 पॉइंट्स के बाद थर्ड पॉइंट आपने करना है, दे वर फोर्स, दे कौन, यानी जमींदार, दे वर फोर्स टू पे 89%। अब ये टैक्स कलेक्ट, गांव के जो लोग होते थे, टैक्स कलेक्ट करने का राइट उन लोगों से, कल्टीवेटर से टैक्स कलेक्ट करने का राइट था जमींदार के पास। जमींदार जितना भी टैक्स कलेक्ट करता था उसका 89% कंपनी को देना होता था और 11% वो खुद रखते थे, यानी उनको फोर्स किया जाता था। कभी समय ऐसा था कि वो सारा टैक्स खुद अपने पास रख लेते थे, टैक्स इकट्ठा करके गांव के कल्टीवेटर से, क्योंकि वो ज़मींदार होते थे। अब उनका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, स्थायी बंदोबस्त कर दिया, क्योंकि वो एरिया कंपनी के अंडर आ गया था, अब वहाँ कंपनी का रूल हो गया था। तो ज़मींदार जितना भी टैक्स कलेक्ट करता था उसका 89% कंपनी को देना पड़ता था और 11% वो रख पाते थे। अब दिस सिस्टम गेव अ बर्थ अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ राजा और तुलकदार कार्ड द जमींदार। अब इससे क्या हुआ, इस सिस्टम से एक न्यू क्लास का बर्थ हुआ, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता था, राजा एंड तुलकदार कार्ड द जमींदार। और ये जमींदार एक नई क्लास जो थी ये सोसाइटी में अराइज हुई थी। हु हैड द पावर टू एविक्ट एनी कल्टीवेटर ऑफ द सोयल ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ रेन्यू। अगर कोई भी कल्टीवेटर टाइम से टैक्स नहीं दे पाता था तो इनको राइट मिल गया था ज़मींदारों को कि ये उसको, उस कल्टीवेटर को से उसकी ज़मीन छीन लेते थे, निकाल सकते थे उसकी ज़मीन से, ये उसकी ज़मीन ले लेते थे। ओके, दे यूज़ द ऑपरेसिव मेथड, ठीक है, टू कलेक्ट द टैक्स। ज़मींदारों को किसानों से कोई सिंपैथी नहीं होती थी, वो बड़ा हार्श, करेसिव हार्श मेथड यूज़ करते थे, ठीक है, उनको सज़ा देते थे, ठीक है, इस वजह से उनके हार्श मेथड यूज़ करते थे मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट करने के लिए। आपने इसके पॉइंट्स बनाते रहने हैं, 3 पॉइंट्स ऊपर मैंने बना दिए थे, अब 5th पॉइंट बना दोगे, इट दिस सिस्टम गेव अ न्यू बर्थ, ओके, दिस सिस्टम गेव अ बर्थ टू अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स, देखिए, दैट वर कॉल्ड जमींदार। नंबर 4, दे यूज़ हार्श मेथड टू कलेक्ट द टैक्स। ओके, नेक्स्ट, पीजेंट वर कंपेल्ड टू टेक लोन। अब यदि वो पीजेंट जो कल्टीवेटर्स थे, पीजेंट थे, गरीब किसान जो थे, ये लोग अगर टैक्स नहीं दे पाते थे तो इनको कंपेल किया जाता था कि लोन ले लो। किससे लोन ले लो? फ्रॉम द मनी लेंडर्स। अब मनी लेंडर से वो लोन लेते, फोर्स किया जाता कि पेमेंट करनी है तो लोन लेके दे के करो, तो लोन लेते मनी लेंडर से, और जिनका जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ही हाई होता था, ठीक है। तो पेमेंट देने के लिए वो लोन लेते गांव के किसान जो थे, विच मेड देयर लाइफ मोर मिजरेबल, जिसकी वजह से उनकी लाइफ और भी मिजरेबल हो गई थी, और भी दुखी हो गए थे, क्योंकि ज़मींदार को टैक्स देना है, ज़मींदार को टैक्स चाहिए, ज़मींदार को क्या चाहिए? टैक्स। अब टैक्स के लिए पैसे नहीं है, समझ आ गई? क्योंकि क्रॉप्स क्या थी, फेल भी हो सकती थी। कैसे फेलियर हो सकती थी? नेचुरल क्लाइमेटीज़, बाढ़ आ गई, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, इसकी वजह से फसल होती नहीं थी, और वो टैक्स भी इतना कलेक्ट करते थे कि फसल बेचने के बाद, अपनी प्रोड्यूस को बेचने के बाद उनके पास इतना पैसा बचता ही नहीं था कि वो टैक्स दे सके, ठीक है। अब उनको टैक्स पेमेंट करना पड़ता था, नहीं तो ज़मींदार उनकी ज़मीन छीन लेते। तो टैक्स पे करने के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए वो मनी लेंडर से लोन लेते। अब मनी लेंडर से लोन लेते तो वो मनी लेंडर के रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हाई होते थे कि वो कभी भी कर्जा नहीं चुका पाते थे, और जो ज़मींदार थे वो मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करते थे। एज द कंपनी कुड नॉट क्लेम ऑन द इंक्रीज्ड इनकम ऑफ ज़मींदार। अब ज़मींदार क्या थे? करप्ट हो गए थे। कैसे? अब कंपनी को उन्होंने 89% शेयर देना है, 89% शेयर देना है। वो लोग क्या करते थे? मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट करना शुरू करते थे, जितना ज़्यादा हो सके उतना टैक्स कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो उनका शेयर 11% है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि अगर सपोज़ करो कि ज़मींदार गांव से 100 रुपये इकट्ठा करता है तो उसके शेयर में कितने पैसे आएंगे? 11% कितने बन जाएंगे? 11 रुपीज़। तो वो क्या करेगा? वो क्यों ज़मींदार थोड़ा टैक्स इकट्ठा करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे ताकि उसका शेयर ज़्यादा हो जाए। अब इससे क्या हुआ? कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट कर ली थी ज़मींदारों के साथ। वो इस चीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकते थे कि तुम किसानों को टॉर्चर करते हो, तुम ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करते हो, ठीक है, उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि ये तो प्रॉमिस हो गया था, एक तरह से साइन हो गए थे
स्टेटमेंट के ऊपर। अब ये क्लेम नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने फिक्स कर दिया था ये कि ऐसा सिस्टम होगा, ठीक है। दे डिसाइड नॉट टू, सो कंपनी क्या कर सकती थी, बंगाल में तो ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट कंपनी ने सोचा कि ये सिस्टम किसी न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज़ को, यानी कोई और एरिया जीतते हैं उसके ऊपर अगर उनको टैक्स सिस्टम सेट करना पड़ जाता है तो ये ज़मींदारी सिस्टम वो सेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी जितना ज़मींदार इकट्ठा कर रहे थे उतना प्रॉफिट, उतना शेयर नहीं दिखा रहे थे, वो अपना शेयर ज़्यादा निकाल लेते थे और कंपनी को कम शो करते थे। कंपनी को इस बात का पता था कि ज़मींदारी जो सिस्टम है, ज़मींदार जो हैं ये करप्ट हो गए हैं, ये ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ये सेटलमेंट हो गई थी, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया था, इससे मुकर नहीं सकते थे वो। अब नेक्स्ट सिस्टम ये बंगाल के अलावा और कहीं सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया। नेक्स्ट आता है रोहितवाड़ी सिस्टम। रोहितवाड़ी सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस इन साउथ इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रोहितवाड़ी सिस्टम, वेयर रोहितवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन साउथ इंडिया, बाय होम रोहितवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, थॉमस मुनरो, ठीक है। व्हेन डिड रोहितवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1820, गॉट इट। 3 क्वेश्चन फिर बन गए हैं। लेटर इन कम इनटू, पहले साउथ इंडिया में किया गया, फिर इसको बॉम्बे में भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब इस सिस्टम का मतलब क्या था, देखिए, दिस सिस्टम एस्टेब्लिश्ड अ डायरेक्ट सेटलमेंट। पहले बीच में क्या डाला गया था, किसको बीच में जो इंटरफेयर था, किसका, ज़मींदारों का। अब ज़मींदार करप्ट हो गए थे, वो ज़्यादा टैक्स लेते और कम शो करते थे, अपना शेयर ज़्यादा से ज़्यादा निकालते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदारी सिस्टम तो इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट सेटलमेंट कर ली। रॉयट्स का मतलब होता है किसान, ओके, पीजेंट रॉयट्स। तो दिस सिस्टम ए डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द रॉयट्स। रॉयट्स मीन किसान, दैट इज़ कल्टीवेटर। और वो जो क्या होते थे, कल्टीवेटर बोलते थे, फार्मर नहीं कह सकते क्योंकि उनके कोई फार्म नहीं होते थे उस वक्त, फार्म हाउस नहीं होते थे। आजकल तो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं तो इसलिए फार्मर्स बोलते हैं क्योंकि उनके खुद के फार्म होते हैं। पहले कल्टीवेटर्स यानी वो कल्टीवेट करते थे लैंड को। कई बार उनकी ज़मीन खुद की भी नहीं होती थी, वो लीज पे भी लेते थे या थोड़ी ज़मीन होती थी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्ट सेटलमेंट करी, यानी बीच में किसी और को नहीं डाला, रॉयट से सीधा टैक्स कलेक्ट करते थे। दिस सिस्टम वॉज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटर्स एंड इट वॉज क्वाइट हाई। रेट ऑफ जो टैक्स था ये बहुत ज़्यादा था और कंपनी के जो लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो डायरेक्टली किसानों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए जाते थे। नेक्स्ट सिस्टम आता है महालवाड़ी सिस्टम, ओके। रोहितवाड़ी सिस्टम वी हैव डिस्कस, आई होप you got it, and now the third system we are going to discuss, महालवाड़ी सिस्टम। अब महालवाड़ी सिस्टम क्या था, द महालवाड़ी सिस्टम वॉज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब टोटली क्या था, जमींदारी सिस्टम को मॉडिफाई किया गया था। मॉडिफाई करके क्या मॉडिफिकेशन की गई, उसमें कुछ चेंजेस किए गए, टोटली जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया। पहला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस, होल्ट मैकेंजी। It was introduced in 1822 और where गैंगटिक वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस का एरिया आपका पंजाब का एरिया आ गया। सेंट्रल इंडिया पंजाब का सिस्टम जो सारा है, गैंगटिक वैली जो आपका हरियाणा, पंजाब, यूपी का एरिया आ जाता है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जिसमें आज पाकिस्तान भी है, यानी जिसको आप महापंजाब कहते थे, वो सारा एरिया आ जाता था, ठीक है। सेंट्रल पंजाब भी आ जाता था। ये सिस्टम उस एरिया में किया गया जो यहाँ पर प्रोड्यूस बहुत अच्छी होती थी, यहाँ की सॉइल भी बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड थी। इन दिस सिस्टम अ कोलेक्टिव सेटलमेंट वॉज मेड विद अ ग्रुप ऑफ विलेजेस कॉल्ड महाल। यहाँ इस सिस्टम में क्या किया गया, ग्रुप ऑफ विलेजेस के साथ सेटलमेंट की गई और जिसको ग्रुप ऑफ विलेजेस को कहते थे महाल सिस्टम, महाल बोलते थे। कई गाँवों का जो सिस्टम इकट्ठा हो जाता था, ग्रुप बना लेते थे गाँव के, तो उसको क्या कहते थे, महाल। अब गांव के ग्रुप बना के उनके साथ कलेक्टिवली सेटलमेंट की गई। अब इसमें क्या किया, इससे जो कंपनी थी दैट गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। व्हाई, बिकॉज इन द अर्लियर सिस्टम दैट वी डिस्कस, जमींदारी सिस्टम एंड रोहितवाड़ी सिस्टम, ब्रिटिशर वर नॉट एबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द लैंड वेयर नो वन कल्टिवेट द क्रॉप्स। कोई भी क्रॉप्स नहीं उगाता था, फॉरेस्ट एरिया था, लैंड थी,
या फिर वहाँ पर पॉस्चर लैंड थी, यानी जहाँ पर पशु चरते थे, ठीक है, खाली ज़मीन छोड़ी हुई थी, उसका टैक्स कंपनी को नहीं कलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि वहाँ कोई भी लैंड जो थी, कोई भी किसान जो था वो कल्टीवेट नहीं करता था, वो वेस्ट लैंड के अंडर आ जाती थी। अब इससे कंपनी को लॉस होता था, क्योंकि गांव में आधी से ज़्यादा ज़मीन ऐसी होती थी जो वेस्ट लैंड पड़ी होती थी, तो कंपनी पूरे एरिया का टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन अब जब गाँव के महाल के साथ, ग्रुप ऑफ विलेजेस के साथ ये सेटलमेंट हो गई, तो कंपनी फॉरेस्ट का, पॉस्चर एरिया का, जो वेस्ट लैंड थी, ठीक है, ये सारी लैंड का टैक्स कलेक्ट कर सकती थी टू द विलेज कम्युनिटी, जो विलेज की कम्युनिटी बनाई हुई थी। लाइक जैसे विलेजर्स वर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। टोटल एरिया कर लिया जाता था कि इस गांव का इतने गांव हैं और इस इतने गांव का इतना एरिया बन गया। कंपनी क्या थी, रेट फिक्स कर देती थी, टोटल लैंड फिक्स हो जाती थी कि इतनी लैंड है, पूरी फॉरेस्ट लैंड भी आ जाती थी, वेस्ट लैंड भी उसी में आ जाती थी, ठीक है, चाहे वहाँ पर कोई फसल उगा रहा है चाहे नहीं उगा रहा, टोटल लैंड देखी जाती थी। और पूरे गांव वाले मिलकर कलेक्टिवली, एक एक से टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता था, कलेक्टिवली उस पूरी लैंड का टैक्स जो था ब्रिटिश को मिलता था। और ये क्या होता था, जितनी प्रोड्यूस होनी है, लेविड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ अ महाल, एक गांव की जितनी प्रोड्यूस होनी है उस प्रोड्यूस के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। ओके, महालवाड़ी सिस्टम प्रूव टू बी अ कर्स for the peasant in the form of impoverishment, eviction from the land and exploitation and the hand of money lenders। अब गाँव के लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड थोड़ी थी, वेस्ट लैंड ज़्यादा थी, उनके पास इतनी प्रोड्यूस होती नहीं थी या इतनी उनकी इनकम होती नहीं थी, इतने पैसे होते ही नहीं थे कि वो कंपनी को टैक्स दे सकें। इससे जो कल्टीवेटर्स थे उनकी कंडीशन बहुत मिजरेबल होगी, उनको लोन लेना पड़ता था मनी लेंडर से, फिर मनी लेंडर टैक्स का रेट हाई लगाते थे। अब वो टैक्स देने के लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे लेते मनी लेंडर से, मनी लेंडर का वो चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी मनी लेंडर्स उनकी ज़मीनें ही छीन लेता था, एविक्शन हो जाते थे, लैंड उनकी छीनी जाती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, इससे जो किसानों की ज़मीन धीरे धीरे मनी लेंडर्स के पास जानी शुरू हो गई, ज़मीनें बेचनी पड़ी उनको अपनी। वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, अब किसानों के अंदर विद्रोह पैदा हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उनको इतना हार्श मेथड यूज़ कर रही थी टैक्स कलेक्ट करने के लिए, इतना टॉर्चर किया जाता था कि उन्होंने कल्टीवेशन ही छोड़ दिया, ज़मीनें छीन गई, मनी लेंडर्स ने छीन ली और उन्होंने कल्टीवेशन करना ही छोड़ दिया। जब उनकी रोज़गार जो था, एम्प्लॉयमेंट था, उनकी ज़मीनें थी, वो ही चली गई। दिस मेड द फार्मर और पीजेंट यू कैन से एंग्री, और इसी वजह से क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया गया। दैट्स वाई नॉर्थ इंडिया, द फार्मर ऑफ नॉर्थ इंडिया 1813 टू 1814 वॉज द वन ऑफ द कॉज ऑफ रिवोल्ट। और 1830 से लेकर 1814 तक इतना टॉर्चर किया गया किसानों को कि इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में इसी वजह से ही पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स विद द स्ट्रॉन्ग फूट होल्ड्स इन साउथ इंडिया। अब ब्रिटिश की साउथ इंडिया में पूरी कमांड थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हमने 9th चैप्टर में डिस्कस किया था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बक्सर के बैटल के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा के वो कंपनी जो थी वो ये रूलर बन गए थे, एम्पायर इनके पास आ गया था सारा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और यहाँ से ये टैक्स भी कलेक्ट करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू कलेक्ट द मैक्सिमम टैक्स। नंबर 1, वाई दे वांटेड टू कलेक्ट द टैक्स? नंबर 1, टू मीट देयर मिलिट्री एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस। नंबर 2, टू मीट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अपने मिलिट्री के खर्चों को और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चों को निकालने के लिए ये टैक्स लेना चाहती थी, कलेक्ट करना चाहती थी। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट, दे वांटेड टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते थे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। ओके, नेक्स्ट, सो द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग कोरेसिव मेथड, कोरेसिव मीन हार्श मेथड, टू प्रोसीज गुड विच वर इन ग्रेट डिमांड। और वो गुड्स जो ग्रेट डिमांड में थी वो ही ग्रो करने के लिए जिन चीज़ों की डिमांड यूरोप में थी, वही गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर को कहा जाता था, फार्मर को टॉर्चर किया जाता था कि जिन चीज़ों की डिमांड कंपनी करती थी
और कंपनी उन्हीं चीज़ों की डिमांड करती थी जो यूरोप में डिमांड में हो। समझा गई। अब गेहूँ है यानी वीट है, राइस है, ये तो यूरोप में ऑलरेडी हो रहा था और यूरोप में वीट को राइस की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट इंडिया में खाने के लिए वीट और राइस की ज़रूरत थी। कंपनी हमें वीट और राइस नहीं उगाने देती थी क्योंकि उसकी यूरोप में कोई डिमांड नहीं है, उनको कोई फ़ायदा नहीं होना था वीट और राइस, हमने खा लेना था और हमने यूज़ कर लेना था। सो कंपनी स्टार्टेड यूजिंग कोरेसिव मेथड यूज़ करने शुरू कर दिए। दे फोर्स द फार्मर टू ग्रो द क्रॉप्स दैट वर ओनली डिमांड इन यूरोप, जो यूरोप में डिमांड होती थी। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल वॉज परचेज्ड एट लो रेट। ब्रिटिश क्या करते थे, हमारे देश से एग्रीकल्चर मटेरियल को वेरी लो रेट पर परचेज करते और उनको हाई रेट में यूरोप में जाकर बेच देते थे। या फिर क्या करते थे, वो हमसे रॉ मटेरियल ले लेते थे और वो यूरोप में भेज देते, यानी ब्रिटेन में भेज देते थे। वहाँ इंडस्ट्रीज़ थी और फिनिशिंग प्रोडक्ट यानी कि उनका प्रोडक्ट बना के हमारे देश में ले आते मशीनों से और हमारे देश में हाई प्रॉफिट अर्न करते थे। ओके, तो वो कौन सी चीज़ों के लिए, फिनिशिंग गुड्स वर ब्रॉट बैक टू इंडिया एंड देन सोल्ड एट अ हाई रेट टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। कंपनी फोर्स द फार्मर टू ग्रो कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का मतलब जैसे इंडिगो, जिनसे उनको प्रॉफिट होता हो। कैश क्रॉप्स मीन जिसको हम खा नहीं सकते, जो इकोनॉमी के लिए अच्छी होती हैं, जिससे हमें पैसा मिलता है, व्यापार कर सकते हैं जिससे हम। इंडिगो होता है नील, जो डाई कलर होते हैं नील, आपने देखा ही होगा, आपके मम्मा भी क्लॉथ्स, वाइट क्लॉथ्स के लिए यूज़ करते हैं कलर करने के लिए। थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर यानी थोड़े थोड़े वाइटिश में आ जाते हैं जो क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लू कलर का ये पाउडर होता है। कॉटन आप समझते हो। ओपियम, अफीम एक नशे के लिए यूज़ किया जाता है। एंड देन पेपर आप समझते हो। नेक्स्ट टी एंड शुगर केन, टी, पेपर, ये कमर्शियल क्रॉप्स आती है, यानी हम इसको वीट और राइस की तरह नहीं खा सकते हैं। उनको कंपेल, इंडियन फार्मर को कंपेल किया जाता था रेज सिल्क वॉर्म, सिल्क के कीड़े पालने के लिए फोर्स किया जाता था, ठीक है। क्यों किया जाता था, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, क्योंकि ब्रिटेन में सिल्क की बहुत डिमांड थी, तो सिल्क की प्रोडक्शन के लिए सिल्क के कीड़े पाले जाते थे। ओके, सिल्क वॉर्म पाले जाते थे। तो इसलिए जिन चीज़ों से उनको प्रॉफिट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वही चीज़ें भारत में ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था फार्मर्स को। द ब्रिटिशर वॉन्टेड टू स्मगल एंड सेल द ओपियम टू चाइना। अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि ओपियम को क्यों फोर्स किया जाता था ग्रो करने के लिए भारत में, टू स्मगल और सेल इन चाइना में। चाइना में ओपियम की बहुत डिमांड थी, अफीम की बहुत डिमांड थी। चाइना में अफीम को सेल करने के लिए और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए भारत में, इंडिया में फार्मर्स को फोर्स किया जाता था ओपियम की खेती करने के लिए, ओके, ताकि वो उसे चाइना में बेचकर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। सिमिलरली इंडिगो, जिसको हम हिंदी में नील कहते हैं, ये यूरोप में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ कपड़ा बनता था, और ये नील जो था ब्रिटेन में बहुत डिमांड में था। द पीजेंट वर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो। अब भारत में फार्मर्स को कल्टिवेट ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था ताकि वो ब्लू जो डाई है, ब्लू कलर जो है, वो एक्सट्रैक्ट कर सके। उनके फूल जो होते थे ना इंडिगो के, आपकी बुक में पिक भी दी हुई है, ये देखिए पिक दी हुई है, ये देखिए ब्लू कलर के फ्लावर हैं। इनको जब ये सूख जाते थे, इनको पीस कर क्या करते थे, वो ब्लू कलर की डाई जो थी वो एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, और फिर इस अपनी जो ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, इस ब्लू को यूज़ करते थे, ब्लू डाई को यूज़ करते थे। ओके, एंड दे लेड मिजरेबल लाइफ। जो फार्मर थे उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो गई थी, क्योंकि एक तो वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, खाने की फसल नहीं उगा सकते थे, दूसरा इनके बदले में उनको लेस प्राइस मिलता था। ओके, तो इसकी वजह से फार्मर्स जो थे वेरी मिजरेबल लाइफ लीड कर रहे थे। नेक्स्ट हम तीसरी क्रॉप्स पढ़ेंगे, द राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर इन वेस्ट। वेस्ट में शुगर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अट्रैक्टेड मैनी यूरोपियन टू सेट अप शुगर केन प्लांटेशन इन इंडिया, जिसकी वजह से अब देखा कि वेस्ट में शुगर केन यानी गन्ने की डिमांड, शुगर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। अब शुगर की डिमांड किससे पूरी हो सकती है, शुगर केन से। इसलिए क्या किया ब्रिटिशर ने, क्या किया, मैक्सिमम ध्यान किसकी तरफ दिया, शुगर प्लांटेशन के लिए। द फार्मर हु प्रोड्यूस गुड़,
जगरी प्रोड्यूस करते थे, यानी हमारे देश में गन्ने की खेती की जाती थी, शुगर केन उगाया जाता था, लेकिन सिर्फ लोकल रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट थी गुड़, हम गुड़ को यूज़ करते थे, और जगरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। ज़्यादा नहीं उगाते थे, कमर्शियल वे से नहीं उगाते थे, ठीक है, सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए उगाते थे, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। वर नाउ फोर्स टू प्रोड्यूस थिकेंड शुगर केन जूस फॉर दी शुगर फैक्ट्रीज एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट अ वेरी लो प्राइसेस। अब फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि शुगर केन जो उसका थिकेंड जूस जो है वो परचेज़ करते थे ब्रिटिश हमसे, और उसके बदले में वेरी लो रेट दिया जाता था। वेरी लो रेट पर थिकेंड जूस परचेज़ कर लेते थे शुगर केन का। थिकेंड जूस से चीनी बनती थी, शुगर बनती थी, इसलिए थिकेंड जूस भी परचेज़ कर लेते थे और उसके बदले में वेरी लेस प्राइस दिया जाता था। द ब्रिटिशर इंडस्ट्रीज फ्लोरिश एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका मतलब ये क्या हुआ, एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, अब ब्रिटिश इंडस्ट्री चल रही थी, यानी कि इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ी, हमारी इंडस्ट्रीज़ को। इंडियन इकोनॉमी टोटली डिस्ट्रॉय हो गई। हमारा जो काम था, हम हाथ से काम करते थे, हमारे देश में जो फसलें उगती थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। ब्रिटिश को जो चाहिए था, जो डिमांड उनके कंट्री में थी, वेस्ट में, यूरोप में डिमांड थी, सिर्फ वही जिनसे उनको फ़ायदा हो सकता था, वही क्रॉप्स वो उगाने के लिए फोर्स करते थे, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट इंडियन इंडस्ट्री को चुकानी पड़ी। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, ओके, ओपियम, ये आप पिक्चर में देख सकते हो। ओपियम बंगाल और बिहार और पंजाब में उगाई जाती थी। इंडिगो बिहार और बंगाल में। कॉटन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। टी असम में, ओके, एंड वेस्ट बंगाल में, साउथ इंडिया में। पेपर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड, पौंडीचेरी में उगाई जाती थी। नेक्स्ट शुगर केन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में उगाई जाती है। आज भी हरियाणा, यूपी, गुजरात, ओके, हरियाणा, पंजाब में आज भी शुगर केन बहुत उगाया जाता है। गॉट इट? सो बेटा, यू हैव टू रीड द लेसन। टुडे वी डिस्कस अबाउट हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉय इंडियन इकोनॉमी, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज़. Today we discuss about the peasant, how they destroy the peasant, how they destroy the economy of peasant, and in the next video we will discuss about the tribal society. So you have to read the lesson very nicely. You have to read the permanent settlement and you have to read about the commercial crops. Thank you. Have a nice day.